हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 17th of April 2023। अच्छा, ये बात आपको बताना चाहिए कि आतिक एंड उनके जो भाई थे, आतिक वाज डॉन, बहुत बड़े वो थे, लेकिन रिसेंटली उन्होंने क्राइम को छोड़ के ही कन्वर्टेड इनटू अ पॉलिटिशियन। बट his brother and himself, can you imagine? Atik and his brother, they were very big dons. They recently turned politicians, criminals turned politicians. Live TV पे इनको मारा गया है। They were live on the TV when they were shot at and they are dead now. तो gangster turned politician आतिक अहमद और उनके ब्रदर खालिद अजीम का अशरफ, now they are dead. So उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े गैंगस्टर्स थे जो अब पॉलिटिशियंस बन गए थे। Questioning of Arvind Kejriwal in connection with the alleged liquor scam at the Central Bureau। तो जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनको अब कोई लिकर स्कैम, शराब के स्कैम के साथ उनको लिंक करा जा रहा है और उसके लिए उनको क्वेश्चनिंग के लिए बार बार सीबीआई वगैरह जो है वो बुला रहा है। Residents living in unsafe places. Okay, this is okay. 65-year-old man mauled to death by stray dogs on AMU campus. Proposal for Sabarimala Greenfield Airport received central approval. सबरीमाला एक बहुत ही फेमस जगह है रिसेंटली इस वजह से क्योंकि सबरीमाला टेम्पल है जो कि अभी काफ़ी न्यूज़ में आया था कुछ सालों पहले बिकॉज ऑफ allowing temple entry to women। तो बिकॉज ऑफ नॉट अलाउिंग टेम्पल एंट्री टू women, तो इसके लिए सबरीमाला इज़ अ फेमस प्लेस। यहाँ पर अब एयरपोर्ट के लिए अप्रूवल मिल चुका है। RSS मार्च इन चेन्नई। Now it's like a trend. Now more people are joining Congress. Earlier, people from Congress were joining other parties. Now, though, almost every day we are hearing one or two people joining the Congress. Army may build Bailey bridges in Kaziranga to protect rhinos domain. Bridges in Kaziranga to protect rhinos domain मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में थोड़ा सा स्पेस अलग से राइनोसोरस के लिए बना दिया जाएगा। To read or not to read. So World Book Day and Copyright Day is coming up. So this article is basically talking about you should read the original text. Do not read the summary. Do not read somebody else's interpretation of that book because it will change. No matter what, no matter the person copies the text, it will change. So the best way to understand a text is reading the original version of it. Now of course, there are some discrepancies in it. For example, we are not well versed with many languages. मतलब हमें कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज नहीं आती, कोई जर्मन में बुक लिखी है, so we don't know German, तो हम जर्मन में नहीं पढ़ सकते हैं। बट स्टिल ट्राई कि जब तक आप इंग्लिश, हिंदी या कोई ऐसी लैंग्वेज की बुक पढ़ रहे हैं which language you are well versed with, to read the original form of it. Okay, do not read
उसका कोई समरी गाइड या किसी और के उससे लिखा हुआ translation by all that stuff. That is not the original version, and that really changes the meaning. Now, murder of law order, Atiq Ahmed case. So yes, this is true. This article is saying कि आतिक अहमद और उनके भाई जो थे उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी, वो हैंडकफ में थे, वो नेशनल टीवी पे लाइव दिखाए जा रहे थे, एंड ऐसे में जब उनको गोली मारी जाती है तो ये लॉलेसनेस को दिखाता है कि एक स्टेट में लॉ, प्रॉपर लॉ की कितनी ज़्यादा कमी है. ओके, तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए कि इस टाइप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लॉ का कुछ बचाता ही नहीं है, छोड़ता ही नहीं है. देयर इज नो लॉ कि उनको अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही है एंड स्टिल दे आर बीन शॉट डेड एट. ओके, डिप्लोमेसी विद अ चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस. So now of course it is talking about the different nations and their power and their mediation, how they are changing in today's time. जैसे कि चाइनीज जो थे उन्होंने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक अग्रीमेंट करवाया, तो इट्स लाइक अ रीजनल अग्रीमेंट. ये हमें दिख रहा है कि कैसे आपस में कंट्रीज आर मेकिंग अग्रीमेंट्स विद देमसेल्व्स. तो हमें भी थोड़ा सा अपना आउटलुक चेंज करने की ज़रूरत है. For a very long time we have been after USA, USSR, USA, USSR, USA, USSR. Okay, that is necessary, but now we have to look after other powers also. Saudi Arabia is emerging as a very, very powerful state country today. मतलब, क्योंकि tourism की वजह से they have gained a lot, and other countries also. So it's just not US or USSR. We have to look to other things also. The past cannot be undone through a rechristening. तो ये बात कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो मुगल्स के चैप्टर्स एंड जो वेरियस चैप्टर्स को हटाने की बात करी जा रही है, तो दिस इज सेइंग दैट दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डैमेज टू द फैब्रिक ऑफ अ मल्टी रिलीजियस इंडिया. आप हिस्ट्री से कोई चीज मिटा नहीं सकते हो. देयर वॉज सो देयर वॉज. एक अकबर थे सो एक अकबर थे. उनका नाम चैप्टर में से, टेक्स्ट बुक में से हटा के, इनफैक्ट व्हाट आई थिंक दैट शुड बी डन, दिस इज माय ओपिनियन, इज कि हमें किसी एक के बारे में डिटेल में ना रख के वी शुड हैव लिटिल थिंग्स अबाउट एवरीबडी. आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडीइंग हिस्ट्री देयर वाज नो चैप्टर ऑन शिवाजी महाराज, देयर वाज नो चैप्टर ऑन अदर राजपूत किंग्स, नो चैप्टर्स ऑन द other Hindu kings as much. मतलब ज़्यादातर आता है मौर्यास, एंड मौर्यास वगैरह के बाद you have an extension of the मतलब फिर मौर्यास के बाद पोला, वो चोलास एंड पांड्यास एंड all these, and then उसके बाद मुगल्स. So where are other contemporaries, शिवाजी महाराज and people like them, the other Rajput kings, इतने सारे और थे. What I feel is कि एक के ऊपर इतना फोकस करने की बजाय सबके बारे में थोड़ा होना चाहिए, बिकॉज मेक देम अवेयर कि इंडिया में सिर्फ मुगल्स नहीं थे. What they had done was मुगल, लगातार 3-4 चैप्टर they were about मुगल्स. So that is not something that is very okay. So मुगल्स को हटाने की बजाय they should decrease the portion of US. Yes, I know. देखिए, हिस्ट्री का एक एक दिन we have left behind thousands of years, और हम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का एक एक दिन हमारी टेक्स्ट बुक में ऐड नहीं कर सकते हैं. सो इंस्टेड मतलब एक एक डिटेल, उनका स्टेट ऐसा था, उनकी वाइफ ऐसी थी, नो वी कैन नॉट डू दैट, बिकॉज वी शुड, आई दिस इज माई ओपिनियन, कि हमें सब कुछ इंक्लूड करना चाहिए. अ पर्सन शुड नो एवरीथिंग. एंड उसके बाद देर आर सोर्सेज ऑन द इंटरनेट कि अगर किसी को, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर हिस्ट्री, डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ सम पर्सन, सम सेट समथिंग, so I go on the Google, I search it and stuff like that. Or you give projects out there that okay, linking to this chapter, each student has to do, मतलब हर student को एक अलग chapter, make them do presentation, stuff like that.
but deleting them is not the solution, and also detailing so much about them is not the solution. So I think that is something that should be improved. 2023 Pentagon leaks have fueled insecurity between the US and its allies. The Pentagon was a cybersecurity team. Well, not a team, but yes, there was a cyber hack in the US. That was something. Now, according to Captain G.R. Gopinath, Rahul Gandhi is a dynast who has become a political gadfly. डायनास्ट मतलब उनके खानदान में ये चीज़ चली आ रही है, रूलर है वो, जैसे राजा, जैसे पहले होता था कि राजा का बेटा राजा, तो उस टाइप से उन्होंने बस अपने आप को एक पॉलिटिशियन में टर्न करा है, अपने आप को एक डेमोक्रेट दिखा रहे हैं. डीलिंग विद डिसिडेंट्स इन अ पोल ईयर. Okay, now this section always talks about the regional politics, state politics, area politics. So, and guys, again I'm repeating, read these articles no matter what. You have to read them. Just okay. This is again talking about the Karnataka Assembly elections. उसका एक सर्वे, कैंडिडेट्स कैसे थे, लोगों के पास चॉइस कैसी थी, what were they thinking about it and stuff like that. Also you should read these archive section because ये आपको हिस्ट्री के साथ एक वो कराएगा, हिस्ट्री 100 years ago, हिस्ट्री 50 years ago. Now, very recently it has been 50 years of Project Tiger. आपको पता है Project Tiger, Project Elephant. आपको पता है that Project Tiger, Project Elephants, ये Project Rhino, these are the different schemes of the government to save these particular animals, to save the wildlife. तो democratizing tiger conservation का मतलब है कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट एंड पर्टिकुलर लॉज बना दिए जाए. ना कि ये सिर्फ कोई है ना, ऐसा मतलब वो नहीं होना चाहिए कि not informal exactly, but it should be a law, not just a plan. So this is what they're talking about, and within these 50 years something has been done. टाइगर की population rise हुई है, but still we need a lot more to do, lot more. So the Wildlife Protection Act, WLPA, जो एक्ट लाया गया था, लॉ लाया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इसने बहुत ज़्यादा अच्छा सुधार लाया है. इंदिरा गांधी ने ये जो लॉ लाया था, ड्यू टू दिस एक्ट lot of improvements have been made. So it was a very good, very impactful act, जिस वजह से वाइल्ड लाइफ काफ़ी सेव हुआ है, टाइगर की नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, एंड वी नीड टू डू मोर. ओके, सो ये डेमोक्रेटाइजेशन जो इंदिरा गांधी ने करा था, दैट वाज वेरी वेरी गुड. ओके, now this is argue because this is a good section if you want to improve your English. Why did Twitter allegedly block access to tweets with Substack links? तो ट्विटर ने क्या करा, Substack is another type of app that is used. तो
ओके, इट्स एन ऐप जो कि राइटर्स वगैरह के लिए होते हैं, पॉडकास्ट लोग अपने पब्लिश करते हैं, कंटेंट शेयर करते हैं. मतलब इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्विटर, मतलब फॉर्म ऑफ ट्विटर नहीं, बट इट इज़ वेरी मच द सेम थिंग जब ट्विटर है, बस इसकी थोड़े थोड़े कुछ चीज़ें अलग है. लाइक ट्विटर में यू हैव अ वर्ड लिमिट, यू कैन नॉट पोस्ट पॉडकास्ट वगैरह इस तरीके से. सो ट्विटर ब्लॉक्ड द ट्वीट्स विथ सबस्टैक लिंक्स, जो ऐसे ट्वीट्स को ब्लॉक कर दिया जिसमें ऐसी लिंक दे रहे थे जिससे वो सबस्टैक ऐप से कनेक्ट हो सके या वो ऐप उसमें खुले. तो यू नो देयर कुड बी वेरियस रीजंस. वन ऑफ देम कुड बी कि यू नो इसके लिए बिकॉज ट्विटर एंड सबस्टैक आर कॉम्पिटिटर्स, दो उनका बिजनेस मॉडल अलग है, दो एक पे पॉडकास्ट एक पे क्या, but still they are competitors, they are both social media platforms. Secondly, also it may be that Twitter messages can work better without links, you know, adjacent to them. So that is why, and फिर उसकी एक स्टडी है यहाँ पे, that all that. Now this is about books, ये आपको पढ़ लेना चाहिए. As I tell you every time, today if you don't have that much time कि आप आंसर सर्च करो, just read these questions and leave it to that. The next day when you get the answers, read the questions again and now with the answers this time. So आपको बहुत जल्दी ये पूरा learn हो जाएगा. Okay, Bagheera, Hedwig, you must have read Harry Potter. It's amazing. So Hedwig was Harry Potter's, you know, pet animal, an owl. 5 years ago, the King of Swaziland renamed his country to Eswatini. So here's a quiz on countries and how their names have changed over the years. Very interesting topic for the quiz, right? Now the word of the day is fleece, that is rip off, that is ask an unreasonable price. Shear the wool from the sheep. दो चार मीनिंग होता है. एक तो फ्लीस का ये भी मतलब होता है कि शीप से उसके वूल निकालना, ऊन निकालना, या रिप ऑफ एकदम कर देना, एकदम से यू नो कोई चीज़ रिप कर देना, फाड़ देना, मतलब खींच लेना एकदम से. एंड एन अनरीजनेबल प्राइस, मतलब जैसे कोई 10 रुपए की चीज़ के लिए बोल रही हूँ कि नहीं मुझे 150 रुपये चाहिए, दैट इज अ फ्लीस ना, अनरीजनेबल प्राइस. सो ही फ्लीस्ड द पीपल बाय पोजिंग एज एन इंश्योरेंस एजेंट. तो लोगों को धोखा दिया. G7 ministers again with their agendas and stuff. ट्रेन आर्सन जो कि हुई थी, ट्रेन में आग लगा दी गई थी केरला ट्रेन में, उसके लिए. Legalizing same-sex unions will improve mental health outcomes among LGBTQIA plus individuals. तो you know same-sex marriages को legalize करना, उसको allow कर देना is something that they are talking about here. Okay. Calls Adani symbol of corruption. Rahul Gandhi.
if defections anti-incumbency trend do not throw a challenge at ruling BJP, history does. हाउ हिस्ट्री डिफेक्शंस मतलब कि जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज कर रहे हैं, फिर एंटी इंक्यूबेंसी मतलब कि कोई कोई स्टेट में ऐसा होता है कि एक बार जो गवर्नमेंट आती है ना, उसके अगले साल उसकी ऑपोजिशन आती है. जैसे हिमाचल प्रदेश इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें एंटी इंक्यूबेंसी गवर्नमेंट हमेशा आती है. पिछली बार देयर वाज बीजेपी, नाउ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, और ऐसा कुछ 4 सालों से ट्रेंड चलता आ रहा है. तो इफ दीज टू थिंग्स डू नॉट पोज अ चैलेंज एट बीजेपी, इन सब चीज़ों से भी बीजेपी को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हिस्ट्री से पढ़ना चाहिए. क्योंकि अब स्टेट की इलेक्टोरल हिस्ट्री जो है वो काफ़ी बीजेपी के उसमें नहीं है. लाइक नन ऑफ द रूलिंग पार्टीज हैज रिटेन पावर इन द पास्ट 38 years. हमेशा एंटी इंक्यूबेंसी ही रही है वो. मतलब जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ऑपोजिशन में ही आती है. टिकट लूजर्स लीकिंग देयर वूंड्स आफ्टर स्पॉइलिंग वोटर्स विद एक्सपेंसिव गिफ्ट्स. तो वोटर्स को महंगे महंगे गिफ्ट्स देने के बाद फिर भी वो हार गए, जीत नहीं पाए. तो दिस इज नाउ व्हाट कैन बी डन ना. बर्लिन शट इट्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फिनलैंड ओपन्स यूरोप्स लार्जेस्ट वन. तो बर्लिन जो कि जर्मनी में है, मतलब जर्मनी ने अपने न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया, और उसके दूसरी तरफ देखिए फिनलैंड ने यूरोप में सबसे बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स खोले. तो न्यूक्लियर पावर गाइस. सो नारायण प्रसाद साहू जो है वो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर बन जाते हैं. ओके. पुतिन एंड चाइना मीट, नाउ इज रशिया एंड चाइना. प्राइस ऑफ पेट्रोल 10 रुपये पर लीटर इन पाकिस्तान इंक्रीज. पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत महंगाई है, मतलब इट्स वेरी कॉस्टली आउट देयर, एंड इट इज़ बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डीप फाइनेंशियल क्राइसिस. Clashes between Sudan army and rivals enter second day. लूला, प्रेसिडेंट लूला, ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है, जॉइंट टॉक्स विद चाइना यूएई ऑन रशियन वॉर. रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर किया उसके लिए उन्होंने जॉइंट टॉक किया चाइना और यूक्रेन के साथ, चाइना और यूएई के साथ. ओके. This is about investment, finances, all those people out there who are looking to invest and stocks and whatnot. Read this guys, read this. देखिए, I agree that practical knowledge is irreplaceable. आप कितना भी बुक्स पढ़ ले, कुछ भी कर ले, जब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं करेंगे नहीं आएगी. बट स्टिल रीडिंग डज हेल्प समटाइम्स. ओके, इट डज हेल्प. ये नॉलेज देती है हमें, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में पहले से बता देती है, जो हमें शायद बाद में गलतियों के थ्रू पता चले. कि गलती हो जाए उसके बाद उस चीज़ का पता चले, इससे बेहतर है कि रीड फर्स्ट. मुंबई इंडियंस विन अगेंस्ट द कोलकाता नाइट राइडर्स. And Rajasthan Royals also win against the Gujarat Titans. IPL season, guys, IPL season. Sports news. Thank you so much. Like, share, comment, subscribe. Keep